अब हमने बहुत ट्राई किया, बहुत जेन्युइनली वी हैव टेकन दिस प्रोजेक्ट टू ऑल द प्रोड्यूसर्स। ये नेचुरली हम प्रोड्यूसर्स नहीं बनना चाहते थे, हम अपनी कहानी कहना चाहते थे। हमारा बहुत ही एक ऑनेस्ट ये आइडिया जो इंट्यूशन हमारे पास आया था ना, हम ये कहना चाहते थे, और हमारे पास वो थी इंटेंसिटी और था वो पावर दैट वी मे बी डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी, बट वी हैव दिस, वी नो दैट दिस गोना हैपन। सो फिल्म्स लाइक पंचवटी एंड ऑल दीज, तो वो थोड़ा यू हैव टू लेट गो। काफ़ी प्रोजेक्ट्स आपको ना करते करते वो ना करने की भी आदत हो जाती है, बिल्कुल, कि नहीं ये नहीं करना, वो सबसे बड़ी हिम्मत ना करने की होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, एज एन एक्टर ना, एज एन एक्टर, बिल्कुल एज एन एक्टर यू हैव टू कीप सेइंग नो, बिकॉज अगर आपको चूज़ करके और अच्छे ढूंढ के करने हैं रोल्स, तो फिर यू हैव टू बी डिप्राइव्ड फाइनेंशियली एंड लग्जरी वगैरह आप भूल जाइए। यू सर्वाइव, यू मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल एंड ग्रेसफुली, जस्ट जितना है उतने में, क्योंकि आपको तो वेट करना है ना, तो वेट करते रहिए फिर। Like, you know, if you want people to produce it, this and that, and of course, you know, why people will produce you are, the first question is, but it comes like you are nobody, you are no one. Then we will prove now who we are God's child. वही सबसे, we are like, of course I keep telling Jitesh is like, no, we are not star kids, but we are God kids, and God is listening to us. Hello everybody, I'm Rudrani and welcome to Zoom Speak Easy. We all love love stories, don't we? Well, it's a unique film that tries to beautifully mesh this idea of love that is eternal, philosophical, and love that is beyond the realms. I have the team of Tara and Akash, Love Beyond Realms, here to tell us all the details and so much more. Thank you for doing this. Welcome to the show. Thank you. Like I said, what a beautiful concept. And I was saying in the beginning, we all, हम लोग सबको प्यार है ना लव स्टोरीज के साथ, और पर आई थिंक चैलेंज ये होता है कि एक नया रूप कैसे दें एक कहानी को, हाउ डू यू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट यू हैव बीन टेलिंग अस थ्रू द ट्रेलर्स दैट दिस इज समथिंग यूनिक. आई वांट टू स्टार्ट विद यू जितेश बाय आस्किंग यू, कैसे, व्हाई, हाउ डिड द कॉन्सेप्ट कम टू योर माइंड? आर यू अ फिलोसॉफिकल पर्सन? आर यू the person who looks at love in an eternal side, beyond the realms? Like I said, you know, I'm absolutely and really inspired by Indian philosophy, especially by this book, Autobiography of a Yogi. You know, when I was reading that and I was really trying to understand the meaning of love, they said that divine romance comes without attachment and without boundaries. I was like, what is this? So when I went into it, I was like, what a beautiful way to describe love, that it comes without attachment and it is without boundaries. There's no change in really divine romance. Like, why don't try this and make a film where the love story begins and you know, it's talking, the characters are from the different realms, and when we show that love and talk about this, that it is without boundaries, how it's going to be. So that's how the concept came in my mind. It was an intuition. And then I approached Srinivas and I've told him that this is the concept I really think about, that you know, why don't we conceptualize and make a film on it, that you know, the divine romance comes without attachment. Everybody's talking about that, you know, they want to be together, they are very possessive in love, they are very emotional. So why don't we show this aspect of love, that it is eternal? So when I reached out to him, he's like, let's just, you know, this idea is very unique, let's just work on it. And slowly we started making and writing the story with him. So yeah. So then I have to bring you in here. Srinivas, so he talks about how you obviously, you know, understood the concept and then you started writing. पर वो अलग होता है क्योंकि concept को पेपर में बदलना और फिर उसकी फिल्म बनाना वो एक अलग जर्नी होती है. स्पेशली अगेन इट कैन साउंड कॉम्प्लिकेटेड, राइट? जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बातें कर रहे हैं, अटैचमेंट है कि या कमिटमेंट है, या तो उसको आसान तरीके से लिखना आई थिंक इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्राइमरी वेज टू डू इट. तो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर जर्नी इन दैट कि ऑडियंसेस को इस ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से कैसे कहें. एक तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि हम इन आइडियाज़ को एक तो लैंग्वेज के थ्रू प्रेजेंट करते हैं जी. समटाइम्स इट कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड, और देयर इज़ अनदर लेयर बीनीथ दैट विच इज़ ऑफ वाइब्रेशन. तो कई ऐसी चीज़ें हैं, मतलब जिन्होंने देखी है ये फिल्म अब तक, उन्हें एग्जैक्टली वो फिलोसफी से अगर कोई पर्टिकुलर फिलोसफी समझ में नहीं आई, लेकिन दे स्टिल अंडरस्टैंड द वाइब्रेशन ऑफ इट एंड समहाउ दे कनेक्ट टू इट डीपली.
एंड रही बात इसकी कि ये चैलेंज बिल्कुल है, जैसे आपने कहा कि कई बार ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, पर हमने वो डिलिबरेटली कोशिश रखी कि ये फिल्म बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो, बिकॉज एंड ऑफ द डे ये लव स्टोरी है। जैसा कि दिख रहा है टीज़र से कि इट इज़ सपोज टू बी एन एंटरटेनिंग कमर्शियल फिल्म, और दैट इज़ एग्जैक्टली आवर आइडिया कि इसको डिवाइस बना के, इसे व्हीकल बना के, लेट्स शेयर समथिंग इम्पॉर्टेंट विद द वर्ल्ड। वाह, वंडरफुली पुट। अलंकृता, मुझे पता है कि अगर आप किसी, आई मीन फ्रॉम शारिक टू एवरीवन काइंड ऑफ सेज द किसी चीज़ को आप शिद्दत से मांगो तो आपको दुनिया आपको जुड़ जाती है उसे दिलाने में। तो मुझे लगता है आपकी भी कहानी कुछ ऐसी है कि आप दोनों ने सोचा कि इस फिल्म को बनाने में खुद ही प्रोडक्शन हाउस एक खोलते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स यू ऑलरेडी हैव that business background and all of that and you were kicked about it, right? Yeah. तो वो कहानी मुझे जाननी है कि किस तरह से आप पहले तो इस कॉन्सेप्ट से आप कैसे रिलेट करते हो, और उसके बाद ये डिसीजन लेना कि आई विल एम्पावर आवर फिल्म बाय टेकिंग इन चार्ज, तो वो कैसे हुआ? So first of all, we started a concept. We always wanted to make in the concept that divine romance comes without attachment, without boundaries. But before making a whole feature film, we wanted to test the water where we stand also. We cannot be just think about taking a huge step without knowing how it's gonna turn out to. So we made in the same concept a short film which we shot in Ladakh, and it was a half an hour short beautiful film called Divine Romance. It got released on Disney Plus Hotstar, and within a month we heard from them that it got 5 million views in a month, and which was huge for us. That So people reached out to us, and we didn't know how to make a film. Like Tarantino, he says, the director says, you don't need to know how to make a film. You just have to love the idea of it, and everything else will fall into place. It just happened like that. And after we got that kind of confidence, then let's move to the next step. Let's go, let's aim bigger. Let's think how divine romance come without boundaries. And when we talk about boundaries, we talk about let's go, take the higher step, which was Switzerland. From Ladakh to Switzerland, it was like, Jitesh was just like, no, why are you thinking so big, and why it's just like, it's not possible for a new filmmaker to go aim such thing. But like, let's do it, no, let's try. What's the harm in that? Yeah, when I explained her this concept, obviously, the first visual came into her mind when we were discussing, the astral realm. She was like, only on this earth, but when I can perceive astral heaven, that's going to be Switzerland. It's so expansive, it's so surreal, that backdrop, I mean, I only see that. Now let's see how we can make that possible, because that has been given it to us. Why don't we just aim big, and it will happen if it has to, if it's really, if we got to put energy to it. It's going to happen. Just really go for it. The way they have narrated me, when I heard for the first time the script, ma'am, I was thinking, okay, where should, because my question always comes from production value, kahan pe hoga? Ye kya hoga? Costume kya hoga? Aise kaise jayenge? Wahan jayenge? My thing always comes towards production. Then he was like, okay, if they are thinking like astral realms and all, VFX is going to cost a lot. So why don't we go to the actual place and shoot it, and which is just like beautiful. So why not to make complicated and all, let's shoot as it is, how beautiful it is. So that's how we end up shooting there. Yeah. जब बातें कर रही थी, मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि आज आप जब प्यार की बातें करोगे, रिलेशनशिप्स की बातें करोगे, तो अगेन दिस इज़ नॉट अ जनरल कमेंट, बट बहुत सारे औरतें और लड़के एंड मेन विल कम एंड टेल यू दैट कहाँ होता है इस तरह का प्यार आज. इससे तो लेवल अप ही होने वाला है कि इस तरह के ख्वाब की ऐसे इटर्निटी के लिए हम लोग कनेक्टेड है. अ पर्सन हु थॉट सो डीपली अबाउट लव, अलंकृता, व्हाट आर योर आइडियाज ऑन व्हाट आई जस्ट सेड? व्हाट इज योर ओपिनियन about love? Yeah, about not just about love, about the fact of today's love. When you think of a concept like this coming today and reminding you कि हम तो just प्यार eternal की बात ही नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं उससे परे. If you have to, I believe, what do you think? If you have to seek that pure love, you have to become that love. If you really have to seek that love, you have to become that person. If you want to really attract that love in your life, तुम्हें वही बनना पड़ेगा ना, तभी you will match the frequency and that person will come into your life. Take notes everybody. जो लोग यहाँ बैठे हैं सिंगल, जैसे एग्जांपल बता देता हूँ. पहले खुद बेहतर बनो, फिर ये बोलो ना. मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि मैं बहुत शिद्दत से, बहुत दिल से दीप्ति मैम के साथ काम करना चाहता था. और मैं चाहता था कि एक ऐसा दिन, जब मैं छोटा था ना, जब हम पिक्चर देखते थे साथ में, मेरी मॉम की फेवरेट है, और मम्मी बोलती थी कि क्या यार तू भी बड़ा होकर कभी एक्टर बनेगा, तब मुझे हमेशा से मैं उनके साथ काम करना चाहता था.
तो वो शिद्दत बढ़ते एक दिन इतनी बड़ी हो गई कि मैम मेरी पिक्चर में मैनिफेस्ट हो गई. So that's what I'm saying, that if you really want to attract that love, you have to become that person. So I've become that purified that I could really work with her, and I was so privileged to us. And you know the moment. The power of manifestation. Yeah. You So can say you want to that. add anything, Alankrita? I think that's the same. I think love is not only about two human beings like a man and a woman. It's just about everything that you love, where you should respect, where you gonna be, that whether it's work, everything. Do whatever you love it and give 100%, and I think that's how it turns out beautifully. And yeah. Power of manifestation की बात चल रही है. Deepti man, he has literally manifested you, he's saying, being a part of it. But I know, you know, with your fantastic body of work, you know that you choose projects that you want to and you believe in. तो मुझे वहाँ जाना है. Why did you want to work in a project like this? Was it the idea? Was it beyond? Because I know you're selective about what you want to be a part of. I think it's the subject that really drew me first. I don't remember किसने मुझे approach किया था. पहले मैंने किया था. तुमने करा था. Yeah. You should get credit for that. Yeah, so I think the concept of the film, it was so fascinating, and never heard anything like it. तो ऐसा कोई subject कभी किसी ने सुनाया नहीं. So I thought, yeah, this is something really, it's so intriguing, and you really want to be part of this. तो they said कि ज़्यादा कुछ नहीं है आपके करने के लिए. They were very apologetic about it कि मैम ज़्यादा ये नहीं है, but अच्छा सा रोल है. And I think I was planning to go abroad, कुछ तो था. And then I thought कि नहीं, let's just be, because सब young लोग थे इस फिल्म में, और especially both of them, इनका enthusiasm, इनका dedication to the film, and there I felt a certain belief that they had in the subject and beyond the subject also. Shri also, and Jitesh and Alankrita, all of them, what I felt was they were somewhere on the same page. When it comes to this kind of a subject, they already have, you know, a feel for this. To me, it may have sounded strange and something that I haven't heard before, or in terms of a script. लेकिन ऐसा मुझे लगा कि ये लोग सब कहीं एक इससे पहले से ये connected हैं, और they have now decided to come together to make a film. ऐसा मतलब ये मेरा, I'm very happy to have, you know, become part of this. It's wonderful. Brit sir, आप जैसे दिग्गज कलाकार, बिल्कुल दीप्ति मैम की तरह आप अपने प्रोजेक्ट्स बहुत केयरफुली सिलेक्ट करते हो. यू नो आपके वर्क ऑब्वियसली बहुत सराहा गया है. सवाल सिमिलर ही है, पर मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी ये बात करी थी ना आजकल के प्यार की, तो मुझे लगता है आप इस विषय पे भी, मुझे लगता है आपके कुछ ओपिनियन हमारे कोर्स में नहीं है. सिर्फ बात ये है कि इन लोगों ने तो पूरी फिल्म पकाई और आई थिंक आधी से ऊपर हो चुकी थी जब हमारी मुलाकात हुई जी. तो जैसे ना जो ब्रह्मांड में जो प्यार पनप रहा था, तो वो बस बुला रहा था, मैं आओ, आओ. तो फिर बातचीत हुई, पता चला कि अमोल सर, दीप्ति जी, अमोल है ना. तो फिर हमने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है, एक अच्छे सत्संग में हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं और प्यार की एक नई परिभाषा जान रहे हैं. चाहे बहुत देर हो गई हमारे लिए, लेकिन फिर भी एक नया प्यार कभी भी हो सकता है. वो कभी भी हो सकता है, लेकिन वो जो पौधे, वो जो फूल बिल्कुल नए नए उसमें, है ना. और फिर जैसे अमोल जी और दीप्ति जी ने जो सिनेमा का एक क्राफ्ट बनाया जी, ऑफ कोर्स, तो अपने आप ही लगता है दिल में कि मतलब कि ऐसी गलती तो ये करेंगे नहीं. हाँ, ये लोग हैं, मतलब है तो भाई पता है तो ऐसे तो आ नहीं गए होंगे. कुछ देखा होगा, कुछ नया सुना होगा, समझा होगा. हमने भी कहा ओके. सर मुझे लगता है आप, जैसे कि अब आप यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, आपने एक चीज़ों को एक आसान तरीके से और बहुत ही एक ह्यूमर के साथ बोलने की ना, आपकी ऑन एंड ऑफ स्क्रीन की एक कला है. और जो आप यू नो खूबी करते हो आप. आई थिंक इन द फिल्म ऑल्सो, आई थिंक कॉमिक रिलीफ बोलना उसे बहुत एक छोटा लगता है सुनने में. आई फील लाइक यू हैव द एबिलिटी टू डू दैट. आई एम श्योर ईयर्स का एक्सपीरियंस है, पर मुझे लगता है आपके लिए ये ज़रूरी क्यों है एक आसानी से बोल देना, यू नो.
क्या है कि वो सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, अपने अपने एक, क्या उसको आप स्टाइल मान लेते हो, उसको आप एक अदा मान लेते हो, एक अंदाज मान लेते हो, डेफिनेटली स्टाइल ना इस तरह से आई एग्री, है ना, इस तरह से बोल देते हैं। तो मेरे को भी आदत बनी हुई है कि मतलब मैं ज़्यादा जाल ना बनूं, एकदम सीधे सीधे तरीके से कोशिश करूं कि मतलब ना कि कैसे कैसे क्या हो सकता है। फिल्म में भी है, फिल्म में भी बताते हैं कि जो कुछ भी मैंने किया है तो थोड़ा सा एक मुस्कुराहट अगर दे दो आप जी, किसी तरीके से ना, तो अच्छी बात है। और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा जिस तरह से का ये सब्जेक्ट है, जैसे कि भी बताया कि कैसे बुना क्या बना, मैं तो सुन ही रहा था कि मतलब कि ऐसा भी कुछ होता है बियॉन्ड, है ना, बियॉन्ड बियॉन्ड, बिल्कुल एकदम, है ना। वो सिनेमा जो अभी देखा नहीं है इन्होंने दिखा दिया बैठ कर ना। सर पता है आपने कहा कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, जो लोग आज के ज़माने के भी हम हैं वो लोग भी ये बोल रहे हैं हमारे लिए भी देर हो चुकी है, बहुत मुश्किल है इस तरह का प्यार नहीं, हमारे टाइम में मतलब ठीक है कि मोबाइल कंप्यूटर आना शुरू हुआ, लेकिन आज के बच्चे जिस तरह से हैंडल करते हैं, हम उनसे ये कहें कि ये हमने बनाया है और हम तुम्हें सिखाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है ना। वो तो आते ही कि मतलब कि टिप्स पे कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं जी। तो ये प्यार भी बिल्कुल वैसे ही है ना कि इसको ये ऊपर अंतरिक्ष से ही इनको पता लग जाता है कि कहाँ क्या कनेक्टिविटी किस तरह से है। सर इतना बोलना चाहूँगी, डेटिंग ऐप्स में तो नहीं मिलेगा ये प्यार, हाँ समझ में आ गया है अंतरिक्ष का ये जो प्यार है, तो लाइक ही राइटली सेड मैनिफेस्ट करो, बिल्कुल 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 इस तरह से शायद। दीप्ति मैन, I'd like to come back to you of course। कुछ समय पहले मैं आपसे आपके बॉडी ऑफ वर्क के बारे में बात कर रही थी। मैं कह रही थी कि यू हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग बॉडी ऑफ वर्क, पर आपके लिए ये जर्नी भी आसान नहीं होगा। बट यू आर वेरी एडमेंट अबाउट द काइंड ऑफ पाथ यू वांट टू टेक, the kind of women that you wanted to portray on screen. Yeah. One of my favorite movies is Mirch Masala. You have a lot of other films from Jashmi Baddoor, but I feel like it kind of, they got the essence that women are not just female characters are supposed to be in the film. I think most of your films, and you took those decisions as well. Yes. My question is, at that time was it difficult because you were saying yes to very less work, but you were also building your own body of work. Yeah. Can you tell me how that journey must have been? Yeah, it has been difficult because those roles are few and far between. Yeah. So there were long periods of waiting कि कोई अच्छा रोल आएगा तब उसके लिए, like the last film that I did, Goldfish, again women oriented because it's a mother and daughter. Yes, thank you so much. It's my favorite role I think till date. तो वो बहुत wait करने के बाद वो फिल्म जो है वैसा वाला रोल, या उससे पहले लाइक पंचवटी, लाइक मैं जिंदा हूँ, अनकही, so many of those films which were female oriented, and somewhere the inner strength of the woman without jhandabazi, without feminism and that whole flag of feminism, but self-assured, and definitely women who were trying to, they knew, जैसे एक पहले फ्रेज होता था कि हम वो अपना अस्तित्व ढूंढ रही हूँ, अस्तित्व ढूंढने वाले थे ये रोल्स. These were women who knew themselves. Wow. They had the inner strength. They didn't have to sort of go all over the place looking for themselves, but they had to take a stance for themselves in a quiet, dignified way. So films like Panchvati and all these, तो वो थोड़ा you have to let go. काफ़ी प्रोजेक्ट्स आपको ना करते करते वो ना करने की भी आदत हो जाती है, बिल्कुल, कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं सबसे बड़ी हिम्मत ना करने की होनी चाहिए. हाँ बिल्कुल. As an actor ना, as an हाँ, actor saying no. बिल्कुल. As an actor you have to keep saying no, because अगर आपको चूज़ करके और अच्छे ढूंढ के करने हैं रोल्स, तो फिर you have to be deprived financially and luxury वगैरह आप भूल जाइए. You survive, you make yourself comfortable and gracefully just जितना है उतने में, क्योंकि आपको तो वेट करना है ना, तो वेट करते रहिए, फिर लंबा वेट होता है. मुझे लगता है ट्रूली पैशनेट होना पड़ेगा आप फिल्मों के बारे में और आपके करियर के लिए, बिकॉज यू सेड दैट. एक दूसरा पहलू भी ये है व्हेन इट कम्स टू स्पेशली फीमेल कैरेक्टर्स एंड ऑल ऑफ दैट, कि द जजमेंट दैट फीमेल एक्टर्स गेट, व्हिच इज इवन राइट नाउ इज आई थिंक इज very very relevant. The judgment that female actors get is way more, and it's extremely problematic, क्योंकि
एक स्टीरियोटाइप में इजीली ढाल देते थे। पहले तो वो होता था कि इस तरह के रोल्स ही दिए जाएंगे, एंड देन देयर वर दीज बॉक्सेस ऑफ दिस, यू हैव टू बी अ सर्टेन एज टू प्ले इट ओनली, एंड देन आफ्टर अ सर्टेन एज यू विल नॉट गेट इंटरेस्टिंग रोल्स, एंड यू नो आप शादी हो जाएगी तो आपकी करियर खत्म हो गई। तो आई थिंक एज अ फीमेल एक्टर दोज थिंग्स ऑल्सो यू वेंट थ्रू, एंड आई थिंक फॉर समवन हु इज डेब्यूइंग आई एम श्योर इट विल बी अ वेरी इंस्पायरिंग journey, and for all our viewers to know that it's difficult but you made it, so we'd like to hear that style. Yeah, see, the thing is today a lot of people are taking the reins in their own hands. Yeah. अब आप मेल स्टार्स देख लीजिए, सबके अपने अपने प्रोडक्शन हाउसेस हैं, बिल्कुल अपने लिए रोल क्रिएट करते हैं, वो करते हैं, वो फिल्म बनती है और वो लोग करते हैं। नाउ पीपल हु आर लाइक इन द कैटेगरी वेयर आई एम, हम लोग हैं, वी मे नॉट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर कि हम प्रोडक्शन में जाएं, या टेम्परामेंट नहीं है, या नो हाउ नहीं है अपने लिए प्रोडक्ट तैयार अपने लिए करें। ऑफ कोर्स आई नो मेनी एक्टर्स एट माय लेवल, उनके पास अपने लिए स्क्रिप्ट्स रखे हुए, रोल्स लिख के पढ़े होते हैं। जी, yesterday मीता वशिष्ठ and I we were talking and she was saying कि अरे इतने सारे रोल्स अपने लिए लिखे, अब तो वो एज निकल गई, तो अब तो मैं डायरेक्ट करूँगी। ये जोक है। तो ये वो भी होता है कि वो टाइम निकल जाता है, यू आर एम्बिशियस, यू डू राइट फॉर योरसेल्फ, लेकिन somehow people at that time were not very good in taking the chance कि पैसा रेज करो, प्रोडक्शन करो और फिर अपने आप को वहाँ खड़ा करो। That has been difficult. I think if I was born in today's time, I may have had more gumption. Yes. But I think I mean, एक चीज़ तो सही है, you're brave then, you're brave now, so that hasn't changed much. Yeah, that way, so yes. that's the way. I think वो हौसला आपने कभी नहीं खोया, and I think that is why you're relevant still today. ब्रिज सर, आपको इसमें लाना चाहूँगी, इन्होंने प्रोडक्शन हाउस की बात की, इनको भी तो वो प्रॉब्लम हुई थी। इन्होंने खुद अपनी पहली फिल्म पे वो एक they took like that risk with it. तो आज का यही एग्जांपल नहीं, क्या है ना कि अगर आप सक्षम हैं जी तो फिर आप कर सकते हैं, आपको करना भी चाहिए कि मतलब अगर ये बात इस तरह से बनती है, क्योंकि आप भी अगर इंतजार करते रहेंगे तो वो फिर टीनेज निकली, फिर आपका युवावस्था निकली धीरे धीरे करके, तो आपको इनबोल्ड होना है और आपके पास रास्ते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, एक पूरी टीम बनती है, उससे फिर आगे और लोगों को भी फायदा होता है। अब आपकी एक टीम बन गई ना इस तरह से। जी, एक और बात ये मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सर बता रहे हैं, मैम बता रहे हैं कि बहुत ही करेज चाहिए करने के लिए, तो मुझे लगा कि ये सपना हमने देखा था, कोई और क्यों इस सपने को पूरा करेगा। अब हमने बहुत ट्राई किया, बहुत जेन्युइनली वी हैव टेकन दिस प्रोजेक्ट टू ऑल द प्रोड्यूसर्स। ये नेचुरली हम प्रोड्यूसर्स नहीं बनना चाहते थे, हम अपनी कहानी कहना चाहते थे। हमारा बहुत ही एक ऑनेस्ट ये आइडिया, जो इंट्यूशन हमारे पास आया था ना, हम ये कहना चाहते थे, और हमारे पास वो थी इंटेंसिटी और था वो पावर दैट वी मे बी डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी, बट वी हैव दिस, वी नो दैट दिस गोना हैपन, जज्बा है, बट वी गोना पुट इट, लाइक वी आर गोना पुट इट आउट, लेट्स विल ट्राई एवरीथिंग विद पॉसिबल। तो ये सपना हमने देखा, तो हम ही पूरा करेंगे इसको। तो हमने देखा हमारे को ऐसे नहीं कि एक्टर बनना है या फिर स्टार बनना है, इसके लिए फिल्म बनाई गई है। ये आइडिया जो था ना, ये मुझे दिया गया था, ये हमें बताया गया है ये आइडिया कि यार ये इस पे है ना, दैट्स लेट्स वर्क ऑन इट। मे बी कहना चाहता है कोई, मे बी देयर इज अ पावर डिवाइन, देयर वाज अ डिवाइन पावर हु वांट्स टू से द स्टोरी थ्रू अस। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये इंस्पिरेशन मुझे ऑटोबायोग्राफी योगी से आया था। एक मैं घर पे अभी जयपुर बैठा था, एक वीडियो देख रहा था कि मैम जब अवेक फिल्म आई थी योगानंदा जी की, तो शी वाज सीइंग दैट फिल्म एंड शी वाज पार्ट ऑफ द स्क्रीनिंग एंड शी वाज सेइंग समथिंग, तो मैंने बोला कि हाउ दिस ऑल इज लिंक्ड, लाइक विद दिस स्टोरी देयर इज मे बी सम डिवाइन इंटरवेंशन दैट कि आज हम सब साथ में बैठे हैं, और ये कहानी जो सपना हमने देखा था उसके लिए स्विट्जरलैंड टूरिज्म कहाँ से आ गए हमारे को हेल्प करने के लिए। NFDC, nobody can believe that Indian government and Switzerland government, they are believed in us when nobody can in the industry, like nobody could, nobody did. Inspiring story, right? Because कितनी इनकी conviction उसकी, it's very commendable. Yeah. Really. And it's not just restricted to even acting. मतलब on a broader level, if you want something and you push your energy into it, it can happen. So that's very inspiring what they've done. बिल्कुल से वो सवाल तो मैं I'll come back to you, but because श्रीनिवास आप ऑलरेडी ज्वाइन कर ले चुके हैं इस कॉन्वर्सेशन को, मुझे आई थिंक यही वक्त मुझे ये पूछना चाहिए आपसे कि हमको बात करनी पड़ेगी, द फिल्म इज़ मेड इन वेरी टाइट बजट, पर आपके सपने बड़े थे, यू वांटेड टू शो द एक्सपेंसिव यूनिवर्स, यू वांटेड टू शो द रेल्म,
तो ऑब्वियसली लाइक यू राइटली सेड बहुत पैसा खर्चा होता है अगर VFX करते, तो आपने डिसाइड किया कि आप you do it with Switzerland. But even then there were a lot of costings and a lot of issues. I want to understand what were the major issues that you faced and you overcame, because a lot of different filmmakers today really struggle with putting out their concepts because they don't have that kind of backing and that kind of help from people, you know. Exactly. So of course we were shooting in a country which is the most expensive country in the whole world. Of course. वहाँ पे even stay का खाना सब कुछ इतना महंगा था और हमारा limited budget था, तो बहुत constraints थे. ऊपर से हम छोटा crew लेकर गए थे of course, right? And then equipment. Technically we were constrained in how we were shooting, right? Limited equipment. और हमें दिखाना था ये, तो that is where क्या बोलते हैं ऐसे हिंदी में जुगाड़. मैं वही सोच रही हूँ, जुगाड़ तो हुआ होगा बहुत. और यही फिल्म मेकिंग है. रॉबर्ट रोड्रिगेज ने जब अपनी पहली फिल्म बनाई थी, एक छोटा सा कैमरा लेके कहीं कूद काद के, दैट्स हाउ इनिशियली फिल्म मेकर्स लाइक अस वी जस्ट स्टार्ट लाइक दैट. बट इन आवर केस gratitude to the universe, to God, that despite of our constraints we have senior actors like them. I mean दीप्ति जी, इस चक्कर में इन लोगों ने हमसे पहले बात नहीं की. हमें सच में बहुत डर लग रहा था. पता ही नहीं था कि क्या हो जाएगा. हम चाहते थे कि हम पहले अप्रोच करें, बट हमें डर लग रहा था कि ये सपना इतना बड़ा है कि नहीं है कि ये दिग्गज एक्टर मना ना कर दे हमें डर के मारे. तो हमें खुद को तो प्रूव कर पाए हम कि शायद सच में. We wanted to show, we wanted to create a show reel. कुछ तो दिखाए ना उनको, जाके दिखा हमने इतना % शूट किया है, ये है वो है. We wanted to show कि like let's be, you know. But it also shows that when they do something it's credible. Exactly. So, fair enough. When we saw the rushes, we actually realized that okay, we have pulled something off here. Then we got the confidence to even approach Deepti ji, Amol ji, Brijinder ji. हमारे खुद में कॉन्फिडेंस नहीं था पहले. You know, after that seeing that rashes ना मुझे लगा कि अब मैम को बोल सकते हैं ना. शी भी लाइक यार कुछ तो इन लोगों ने ऐसी कहानी नहीं बना रहे, नए लोग आ गए हैं, कुछ भी बोल रहे हैं. Because it's not about you just keep dreaming, you have to do also. Like you know, हम सोचते रह जाएंगे तो हम करेंगे कब? No, I always keep telling everyone, you know, अभी हम बजट करोगे, ये करोगे, वहाँ जाओगे. It's better let's think about it, how to manifest it, and let's put 100% will and work into it. Then only you can go somewhere and shoot. Like आप सोचते रह जाओगे, करोगे कब? मतलब मेरा यही point है. Like you know, if you want people to produce it, this and that, and of course you know why people will produce you. Are the first question is, but it comes like you are nobody, you are no one. And we will prove now who we are. We are God's child. वही सबसे we are like of course I keep telling Jitesh is like no, we are not star kids, but we are God kids, and God is listening to us every time. That's wonderfully put. I'll come back to Britsa, but Alankara, because you said that, I think I'd also like to understand your point of view in shaping your character, right? Yeah. Again, it's beautiful that this love story, I'm sure, will have layers to your characters and understanding. Maybe it's even flawed, you know, all of that. So मुझे जानना है, how did you kind of put in your research or your framework in understanding your character? And then going forward, इसके बाद, अब तो ये debut हो जाएगा, right? Official. उसके बाद का decisions, I know that you have been thinking कि how will I have to go back in the race again, right? Yeah. Again standing those lines, again trying to do different kind of films. So मुश्किल होगा, like ma'am said, right? It's going to be a difficult journey. What are your thoughts on that? How have you motivated yourself? I'm sure there are some incidents that you'd like to talk about. You know, of course, I love acting. I like to be the part of it. But for me, it's like I also enjoy being behind the camera also. It's not just acting for me. I'm so sorry. No, but why it's are you just like, sorry? yeah, it's just like everything I like to do. The collective efforts. Like, you know, it's not only that I have to act and I have to be there in all the films that I produce. It's never like that. Because I love the process of filmmaking, it's whether me or anybody else, I'm ready to be the part of it. And of course, if I go outside, people are giving me roles, I would happily accept it. But it doesn't mean that, you know, I will बहुत जाके खड़े होके वो करते रहो. Because if I want something, I feel like I'll get it. And I'll try 100%. I love the confidence. Yeah, like love it. If you want it, you get yes, or create it for self or something like that. अभी मतलब मेरा टाइम हो गया. अभी I will not wait and बहुत ज़्यादा मतलब that's gone. That's beyond it now. If I have the confidence and conviction to it, I think we can do something really magical. You go, girl, is what I want to say. Go, get them all. But sir, जैसा मैं कह रही थी, आपने कहा the power of saying no. This is going to be very handy for both of them also, right? Because since now that they are going to get launched after this, the power of saying no
एंड द पावर ऑफ सेइंग यस विल कम इन। पर उससे पावर ऑफ सेइंग नो में ये होता है सर, बहुत सारे लोग उसको ईगो भी समझ लेते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है, लॉट ऑफ बिग प्रोडक्शन हाउसेज दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू सेड नो, एंड बोथ ऑफ यू आर एग्जाम्पल्स ऑफ द फैक्ट कि आप लोगों ने ये कभी नहीं सोचा कि मेरी फिल्म में 5 मिनट है या 10 मिनट है। और ये डिस्कशंस इंटरनेशनली यार बहुत सारे, ये टॉपिक नहीं होता है कि मुझे आधे घंटे रहना है, मुझे बाकी का मुझे पता नहीं है, डायलॉग मुझे और दो। तो ये सब जो बातें हैं, आई थिंक आप एक प्राइम एग्जाम्पल है कि आपने ये सब अपने करियर में झेला है और आप फिर भी अपनी राह पे आप रहे एंड यू टुक दोस चांसेस। मुश्किल होता है या आपने उस समय पे इस चीज़ों को नेविगेट कैसे किया? पहले तो नो था ही नहीं ना। हाँ बिल्कुल, पहले तो जो आया यस सर, बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर एक समय आता हर, Because also your livelihood is also acting बिल्कुल। in cinema. Wow. And फिर एक वक्त ऐसा आया था कि मतलब उसके बाद सर हमको प्रोडक्शन हाउस का भी कोई, मतलब आप बेफिक्र रहते हो जी। मतलब अब कोई आपको बनाएगा तो नहीं, अब जो भी बनना था वो बन गया है ना, कि मतलब अरे सर ये कर लोगे तो मतलब आने वाला फ्यूचर ऐसा होगा, ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं। वो टाइम चला गया, तो इसलिए इजी होया था थोड़ा सा कि अगर आपके पास टाइम है, डेट है, या आप कन्विक्शन है कि मतलब ये कैरेक्टर इस तरह का है, तो आप बोल दोगे ठीक है भाई मैं कर लूँगा। लेकिन वो बोलेगा नहीं सर ये तो अभी लाइन क्या चल गई, आप ही के लिए लिखा है। I like it. Dipti started laughing. ये बिल्कुल आप ही के लिए लिखा सर। Very common line. तो मैं कहता हूँ पता नहीं मेरे से तो मैच नहीं करता ये कहीं, जिस तरह के मैं करता हूँ ना ऐसे। तो फिर वो फिर टालम टोल होकर के मतलब कैसे न कैसे करके, तो ये इस सिचुएशन में ऐसा नहीं कि मतलब हर वक्त आप नो कर दोगे। बिल्कुल। और जहाँ तक ईगो है सामने वाले की, तो सामने वाले को फिर ये लगता है कि यार अब नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, क्या कर सकते हैं ना। अब मेरी वजह से सिनेमा चलेगा, मेरी वजह से नहीं चलेगा तो होगा नहीं। बिल्कुल, है ना। मैं एक सपोर्ट पिलर हूँ, जिस तरीके से आप तारीफ होगी तो मेरी भी हो जाएगी, और अगर पिक्चर को कोई डिस्करेज करेगा तो मेरी बात नहीं होगी, ये तो पक्की बात है। I love the honesty. हाँ सर ऐसे हो सर, लेकिन आपके रोल्स को कभी कोई डिस्क्रेडिट नहीं करेगा सर। नहीं, वो अलग बात है। आई लव दैट। ओके, अनफॉर्चुनेटली हमारा समय समाप्त हो गया है, बट मैं बहुत एंजॉय कर रही थी आप लोग से ऐसे बातें करके और फिल्मों के बारे में और जर्नी के बारे में सुनकर। एंड आप दोनों से करना चाहूँगी, आपका ऑफिशियल डेब्यू है, आप अपने ऑडियंसेस को क्या कहना चाहेंगे? अभी हमने इतनी सारी बातें की फिल्म के बारे में, अगर आप चाहेंगे कि एक चीज़ आपकी फिल्म देखने के बाद वो समझे, दे कैन टेक इट बैक होम विद देम एंड उनके जहन में रहे, व्हाट वुड दैट बी एंड व्हाई? मैं बोल रहा हूँ कि एक बहुत ही ऑनेस्ट अटेम्प्ट है। अगर आप एक नया सिनेमा देखना चाहते हैं जो कि सिस्टम से दूर है, एक ऐसी कुछ चीज़ देखना चाहते हैं जैसे हमें नए फिल्म मेकर्स को इनकरेजमेंट मिले और एक प्यार का एक नया मीनिंग समझ में आए, तो प्लीज़ आइए और हमें सपोर्ट कीजिए। क्योंकि अगर हम ये कहानी कह सकते हैं तो इसका मतलब है आप भी ये कहानी कह सकते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आप भी ऐसी कहानियाँ बना सकते हैं। So if you're supporting us, you're supporting yourself. Please support the new filmmakers and please watch our film, because by the efforts of government, our film is releasing in theaters, which is very rare in today's world. But we got the theaters and we are so happy and privileged because of great actors in our film. And now I say, please watch this effort and come for the love and be the love after the film. Do not stop. Try everything. Try unconventional ways. If you want something, please get it. Please try 100%. If you fail also doesn't matter. If you love something, please get it. This is what we meant by making this film. And of course, you will see a lot of love, passion, destiny, beyond realms. And this is not just a film that you ends happily ever after. This film is beyond ever after. So you will see what kind of beyond ever after we are talking about. So it's releasing on 26 September. थैंक यू। 26 सितंबर को थिएटर में देखने जाइए और बताइए हमारी फिल्म कैसी है। आप अपने नज़दीकी सिनेमा हॉल में जाइए 26 सितंबर अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, मोहल्ले के साथ बिल्कुल मोहल्ले के साथ जाइए। एब्सोल्युटली ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट एंड थैंक यू। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, बस प्यार बांटते चलो। आई लव इट, प्यार बांटते रहो। ऑन दैट नोट, थैंक यू वंस अगेन। Thank you.